Good morning, everybody. This is PS1. Today, I am going to discuss some civil service mains questions here, and these are on what we can say. These are issue-based questions, like on the basis of women empowerment, how women are surviving, and also enjoying all the authorities which have been reserved to them by Indian constitutions. Secondly, we will discuss here. I think this will be the first lessons as per the main questions that after COVID-19, a lot of packages were given by our central government as well as the state governments also. During that scenario, what the expectations of the people and what our government has given, actually we will discuss all about. And today our topic is critically analyze the impact of Prime Minister Garib Kalyan Yojana on improving inclusive growth in these challenging times. Like that, we know as per the requirements as COVID-19 pandemic, during that our government has provided a lot of economic packages to all of the peoples who are deprived, who are unable to carry out their life, they are unable to sustain and fulfill their requirements as a standard of living. So what the government has initiated last states. All about, as per the mains questions, today we will discuss about the mains questions that critically analyze we have to do. All the steps which have been taken by our government, actually we will discuss here. In that scenario, in the form of practical sense, we can also learn what is the Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Yani Yojana. Actually, on 5th May 2020, what was the progressive activity and point must be initiated by our government? Actually, we will discuss here first. And all the mottos, objectives, and what is the current scenario as per the data analysis. Actually, we will discuss all about it. Like I'm going to discuss about some PIB reports, what PIB is, what this report is, because this will be this pictorial part will be very influential for you while you are going through TT mains examination, as well as you can also give these data on the basis of mains examination if you are remembering. Okay, otherwise that's great. You can go through only interpretational expression. Okay. So here, if I'm talking about the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, actually, what do you mean by Garib Kalyan Yojana? Okay, actually, total direct प्रॉफिटेबिलिटी ट्रांसफर जो हुई है वह अभी तक हम कह सकते हैं 39 करोड़ से भी ज्यादा गरीब लोगों को सरकार इस तरह के कह सकते हैं प्रॉफिट प्रोवाइड की है, जिसमें हम कह सकते हैं गरीब लोगों को लगभग 34,800 करोड़ रुपया अभी तक हम कह सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प दिया जा चुका है। इज इट ओके? यानी सिंस इनॉग्रेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। इज इट ओके? सेकेंडली, पीएम किसान का जो पहली जो किस्त थी वह 8.19 करोड़ का था, जिसमें किसानों को 16.394 करोड़ रुपया यहाँ पर ट्रांसफर की गई थी। उसके बाद सोच सकते हैं दो किस्त और हुई जिनमें 25.62 करोड़ महिला जनधन खाता धारक जो थे, यानी जिनके पास जनधन योजना के तहत जिनकी खाता थी, अकाउंट्स होल्डर्स थे, उनके पास या उनके अकाउंट में 12,810 करोड़ रुपया का ट्रांसफर सरकार ने किया। इज इट ओके? लगभग 2.82 करोड़ जो आप कह सकते हैं सीनियर सिटीजन यानी ओल्ड एज है, जो विधवा हैं, ठीक है, और दिव्यांग यानी कह सकते हैं जो फिजिकल डिसेबल्ड है, उनको 1,405 करोड़ रुपया भी उनको अभी तक ट्रांसफर किया जा चुका है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दे दिया जा चुका है। इस आधार पे आप देख सकते हैं कि लगभग 2.20 करोड़ अभी तक हम कह सकते हैं भवन और अन्य निर्माण में जो श्रमिक हैं यानी लेबरर्स हैं, उनको 3493 यानी 3,493 करोड़ रुपया का उनको फाइनेंशियल हेल्प दिया जा चुका है। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है
में अभी गवर्नमेंट की जो कह सकते हैं जो अंशदान है यानी इनकी जो कह सकते हैं शेयर है वह 698 करोड़ रुपया अभी तक ट्रांसफर किए गए हैं, जो 44.97 लाख कर्मचारी इससे प्रॉफिटेबल हुए हैं, आप कह सकते हैं उनको बेनिफिशियरी की श्रेणी में लाया गया है, यानी उनको लाभ प्राप्त हो चुका है। तो ये सारे आप डेटा को भी इकट्ठा याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसके अंतर्गत आया, तो अप्रैल महीने के लिए 36 राज्य और केंद्र शासित जितने भी हमारे प्रदेश हैं भारत के, वही सारे के लिए हमने देखा कि लगभग 67.65 लाख टन गवर्नमेंट जो थी अनाज का उठाव किया। अनाज मतलब कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट ने कहीं किसान से या कह सकते जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वहां से गवर्नमेंट ने इसको सप्लाई कर दिया या कह सकते अलॉटमेंट कर दिया। अप्रैल के लिए आप देखिएगा तो 36 राज्य और जो हमारा टोटल जो यूनियन टेरिटरीज है ये दोनों को मिलाते हैं तो लगभग 60.33 करोड़ जो भी हमारे पास बेनिफिशियरीज थे, बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी, ठीक है, उनको 30.16 लाख टन उनको फूड जो प्रोडक्टिविटी था यानी फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन थे उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी किया गया है। मई में अभी तक हम देखें कि 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया जाए तो लगभग 12.39 करोड़ जो बेनिफिशियरीज थे उनको 6.19 लाख टन उनको खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है, यानी इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। 2.42 लाख जो है टन आप देख सकते हैं पल्स विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ने सप्लाई किया यानी अलॉटमेंट किया यानी बांटा है। तो इस सारे के सारे जो थे एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि ड्यूरिंग कोविड-19 नो वन गो थ्रू हंगर, है ना, कोई भी स्टारवेशन तथा हंगर का शिकार ना हो, गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव्स को लिया। अब इसमें और चीजों को जोड़िए कि गवर्नमेंट ने इसके अंतर्गत और क्या लाया, तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी इसके अंतर्गत हमने देखा कि 4.82 करोड़ जो था गैस सिलेंडर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो भी कम्प्लीटली क्या था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, यानी कह सकते हैं मुफ्त में थी। नरेगा की यदि हम बात करें, मनरेगा की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 से बढ़ी हुई दर यानी जो उनका वेजेस था उस वेजेस को सरकार ने बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ी हुई जो उनके वेजेस थे उसके आधार पर जो भी नोटिफिकेशन लाई उसको इम्प्लीमेंट की गई। मौजूदा जो वर्तमान की यदि फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो 5.97 करोड़ जो हमारा टोटल जो व्यक्ति थे उनकी जो वर्किंग डेज होता है उनको अवसर प्रदान भी कर दिया गया, लगभग 5.97 करोड़ लोगों को, ठीक है। और राज्य के जो सैलरीज होते हैं और उससे रिलेटेड जो सामग्री जो होते हैं दोनों के लिए जो भी उनके बकाया थे उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, भुगतान भी कर दिया, जो कि हम देखते हैं 21,032 करोड़ रुपया इसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया या कह सकते हैं इसके लिए उन्होंने अलॉटमेंट दिया। और अब यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये जो हमने डेटा लिया है, ठीक है, वो हमने लिया है PIS से, ठीक है, और मुख्य रूप से देख सकते हैं वित्त मंत्रालय से हमने इसको उठाया है। अब देखते हैं, कहता है कि न्यू इंडिया जो इंश्योरेंस है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि बीमा योजना के तहत जो कार्ड किए गए जैसे सरकारी अस्पताल हुए, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हुए, तो काम करने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट ने किया 22.12 लाख जो स्वास्थ्य कर्मी थे, है ना, हेल्थ वर्कर थे, उनको भी सरकार इसमें शामिल कर दिया। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो सरकार ने लाई इसके अंतर्गत किस तरह की एक्टिविटीज को किए गए। अब हमारा जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या इसको हम क्रिटिकली कैसे इवेलुएट करेंगे, तो इसमें भी कुछ हमें डेटा को देखना हो। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है यह हमारा एक इकोनॉमिक पैकेज है, सबसे पहले याद रखिए, जिसका हम टोटल जो कह सकते हैं अमाउंट था 1.70 लाख करोड़ था, और गवर्नमेंट ने इसको जो अनाउंसमेंट दी थी वह अनाउंसमेंट देने के पीछे रीजन था कि जो कोविड-19 जो पेंडेमिक थी इसके दौरान जो मानवता हमारा कह सकते हैं कि मानवता के नाते कह सकते हैं कि एक बराबरी होती है, राइट। तो इस एक्टिविटीज को उन्होंने क्या किया कि फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो मॉर्निंग Government of India has also allocated this package. Okay, in this package, actually, what was the cost? Cost was 1.70 lakh crore, and this was completely provided to all those people who are deprived. Okay, and they have no subsequences about their rights also. Okay, and they suffered due to COVID-19 pandemic also. Okay, in that scenario, actually, government has allocated this types of financial help. You can say. Okay, और ये हमारा जो था एक economic package में आप कह सकते हैं. Is it okay? तो ये हमारी फॉर्मेशन हुई। And after that, what the coverages have been held?
तो इसमें भी हम बहुत सारे चीजों को देख सकते हैं। नाउ यू कैन आल्सो स्टडी अबाउट इट दैट इट इंक्लूडेड इंश्योरेंस कवरेजेस ऑफ 50 लाख ओके फॉर हेल्थ वर्कर्स, यानी जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे उनमें हमने देखा कि 50 लाख हेल्थ वर्कर्स को इंश्योरेंस कवर में लाया गया। साथ ही साथ फूड जो सपोर्टिंग थी उसमें 5 kg प्रत्येक मंथ अनाज दिए जाएंगे और 1 kg प्रत्येक मंथ दाल दिए जाएंगे, और इससे लगभग 80 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन थी, पीपल थे, उनको इससे फायदा होगा। साथ ही साथ जो जनधन अकाउंट थी उसमें हमने देखा कि 20 करोड़ विमेन जो थी उनको 500 रुपया जनधन अकाउंट के द्वारा गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा उनको देती है। इज इट ओके? एंड फ्री एलपीजी उज्ज्वला बेनिफिशियरी जो थे उनको दिया गया। नरेगा का जो वेजेस है उसको सरकार ने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम कर सकते हैं फ्रंट लोडिंग ऑफ पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना जो थी उसके आधार पर हमने देखा किसानों की गवर्नमेंट ने भी 6,000 सालाना देने की बात की, राइट। तो these are the contributions which can be contributed to the EPF and Employee Provident Fund of workers and advance from EPF up to 75%. Is it okay? And it also included the expensive and extensions of the collateral free lending up to 20 lakh for women SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसमें हम देख सकते हैं कि महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, स्वयं सहायता जो केंद्र होता है, ठीक है, समूह होता है, इसको लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ को हर महिला जो एसएचजी होते हैं उसको करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। अब इसके लेकर के इससे क्या क्या और बेनिफिट्स हो सकते हैं इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो इस आधार पर हम कर सकते हैं जो प्रोमोटेड इंक्लूसिव ग्रोथ इन फॉलोइंग मैनर्स, लाइक इससे क्या हुआ कि हमारा हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी इसको हमने प्रमोट कर दिया। फिर डेवलपमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी यानी फूड सिक्योरिटी को भी हमने डेवलप किया जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन को हम प्रिवेंट कर सकें। And the crisis for workers and laborers along with the urban and rural areas. Actually, there is no discrimination, there is no inequalities. That government has provided these types of interpretations as per the financial help, as per the economic help, economic packages. Actually, these are for all the peoples either living in rural areas or urban areas. There are no any discrimination. Okay. And promotion of clean fuel means I'm talking about Ujjwala Yojana, where free of cost gas cylinder were distributed among the women, okay, तो which assured supply energy for to poor households को भी सरकार ने उपलब्ध कराई थी। अब देखते हैं प्रमोटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट ने प्रमोट भी किया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अभी बढ़ाइए, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल विमेन को भी उन्होंने एक्टिविटीज दी, जैसे आप कह सकते हैं बहुत सारे संशोधन भी रूल्स में किए गए, लेड मी टू सेव देम फ्रॉम द लिक्विडिटी क्रंच ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ओके। And driving rural demand for both agriculture inputs and output process for the front loading PM किसान, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आप कह सकते हैं कदम उठाया कि सभी को हम कुछ न कुछ आपको देंगे, आपकी डिमांड जो उस डिमांड को फुलफिल करेंगे, राइट। एंड सेविंग रियल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी रियल जो एक्सपेंडिचर है उसको हम सेव करने की बात करेंगे, देन सपोर्टिंग थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा, ओके। एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाज टू एश्योर दैट ये सारी चीजों को जब आप स्टडी करते हो तो स्टडी करने के बाद हमें इंश्योरिटी आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है कि डिमांड कोलैप्स कैन बी प्रिवेंटेड, कि जो हमारा डिमांड कोलैप्स हुआ था इससे बचा जा सकता है, राइट। हंगर जो डेथ हुए, जो हम कह सकते हैं भूख से लोगों की मृत्यु हुई और जो सफर कर रहे थे वो सारे को भी बचाया जा सकता है। माइग्रेंट्स एंड लैंडलेस लेबर कैन बी सपोर्टेड, तो गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट भी किया, राइट। एस्पेक्ट ऑफ डिजीज और डिजीज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी थी आप कह सकते हैं बहुत सारे अवेयरनेस भी लाई गई, be controlled by using district minerals fund for healthcare support and expenditure, okay। And thus therefore we can say Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was a strong initiative which has been initiated by government of India and inaugurated by Pradhan Mantri yani Prime Minister of India Mr. Modi, and is supporting vulnerable sections for economy during the restrictions and economic slowdown. So these are the main valuable part what we can study there. And something government has also initiated in this schemes that Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana in 2016, a scheme to open up 31st March 2017. What was the initiative up to 31st March 2017? So what was the main feature? Feature was declarations can be made any person by any person in respect of undisclosed income in the form of cash, यानी गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आप इसके अंतर्गत आप किसी को आप कह सकते हो हेल्प करते हो, ठीक है, इसके अंतर्गत आप किसी भी प्रकार की कैश डिपॉजिट अकाउंट में करते विद द बैंक और पोस्ट ऑफिस स्पेसिफाइड एंटिटीज, तो आपको इससे कुछ रिबेट दिया जाएगा, राइट।
टैक्स चार्जेस पेनाल्टी जो टोटलिंग होगी अप टू 49.90 है ना ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम टू बी पैड। तो आप वो यदि इंटरेस्ट अनडिस्क्लोज है उसमें भी पैड किए जा सकते हैं। एंड मैंडेटरी डिपॉजिट जो गवर्नमेंट ने किया कि 25% ऑफ द आपको जो अनडिसॉल्व जो आपको इनकम है वो किया जाएगा टू बी मेड इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना के तहत 2016 में आया था। एंड द डिपॉजिट्स आर इंटरेस्ट फ्री या डिपॉजिट जो थी जिसमें कोई भी हमारा इंटरेस्ट नहीं था एंड हैव लॉक इन द पीरियड फॉर 4 इयर्स, 4 सालों के लिए सरकार ने दिया था। अब इसके बाद कह सकते हैं मोड ऑफ जो मार्केटिंग डिसीजन थी या डिक्लेरेशन मेकिंग का क्या था। तो टू बी फाइल ऑनलाइन गवर्नमेंट ने कहा कि इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने वो कह सकते हैं कि दिया, मतलब लिंक भी उसको प्रोवाइड किया। इम्यूनिटीज हैं, कुछ अटेंशन भी है, वो अटेंशन को भी आप पढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज थी इसमें हम कह सकते हैं, अब देख सकते हैं लास्ट डेटा कि मोर देन 33 करोड़ पीपल रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ लगभग 31,235 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें हम कह सकते हैं 10,025 करोड़ जो थी यह हमारा था डिस्बोर्स टू 20.05 करोड़ टू विमेन जनधन अकाउंट होल्डर, यानी केवल जो जनधन अकाउंट होल्डर जो महिलाएं थी उनके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के आधार पर 10,025 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया। फिर हम देखते हैं कि 16,146 करोड़ जो थी वह ट्रांसफर किया गया 8 करोड़ फार्मर्स, 8 करोड़ किसानों को किया गया एट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान में। फिर हमने 2.17 करोड़ देखा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स थे उनमें 2.17 करोड़ सरकार ने किया जो रिसीव किया फाइनेंशियल सपोर्ट अकाउंटिंग को 3497 करोड़ रुपया टोटल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जिस वर्ष की हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तो लगभग 1405 करोड़ जो थी अबाउट 2.82 करोड़ ओल्ड एज जो पर्सन थे या विडो थे या डिसेबल्ड पर्सन थे उनके बीच में इतना बांटा गया। एक 162.11 करोड़ देती या ट्रांसफर की गई 68,68,775 जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेनिफिटिंग 10.6 लाख, ठीक है, एम्प्लॉइज अंदर ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ने, और ये सारे डेटा जो हैं वह 22 अप्रैल 2020 तक का डेटा है और इस पे गवर्नमेंट का नया डेटा आने वाली है तो आएगी तो इसको हम इसमें एक्सेलरेट कर देंगे जिसमें हम जोड़ने की बात करेंगे। अगले हम टॉपिक में बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के और उसमें हम देखेंगे कि महिलाओं को लेकर के व्हाट इज द प्रोविजंस एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दैट ऑन 12 मार्च 2021 there was a summit which will be held by IBSA India Brazil South Africa where all the women leader you can say women empowered we can say actually they participated. What were the provisions, what was the main motto behind it, that on 12 March 2021 what the collateral form has been held there. Okay, so actually we will discuss there ओके आफ्टर दिस लेसन्स, यानी हम सेकंड एपिसोड में उस पर हम डिस्कशन करेंगे और भारत के संविधान में महिलाओं को क्या क्या प्रोविजंस हैं ये सारी चीजों को हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, तो अब हम लोग आगे की चर्चा जो होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीजों को मुख्य से करना चालू करते हैं।